ये स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5. ओके. द कोविड-19 pandemic. The COVID-19 pandemic, also known as coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of the coronavirus disease caused by the transmission of severe. Yes. Section 10, please switch on your video. The following table shows the age distribution of cases admitted during a day in two different hospitals. Right? तो बच्चे दो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, दोनों में कितने केस एडमिट हुए? हाँ जी बच्चे बोलिए. 10E. You wanna say something, student? आपका वीडियो भी ऑन नहीं है बच्चों. राइट. तो बच्चे टेबल गिवन है दो. राइट. बच्चे गिवन है कि how many patients of what age group were admitted in that particular hospital. Now comes to the question straight away. Refer to table 1. जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टेबल के बेस पे है. द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर. हाँ जी, मैक्सिमम केसेस किस एवरेज एज के स्टूडेंट्स पेशेंट जो थे वो एडमिट हुए. So now please tell me what we have to find in this. Yes students, what we have to find in the first question? कैसे बेटा? बेटा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम केसेस मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. Hence we have to find the mode of the data. मैक्सिमम केसेस मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिस एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. So that means we have to find the mode of the data. So please find out कीजिए mode of this data. Please find out mode of the data on the basis of table 1. So table 1, age 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, right? Frequency is number of cases 6, 11, 21, 14 and these are the number of cases. So you have to find the mode. So which is the maximum frequency? This class. This will be your model class. Now this is your F1, F0, F2, right? So what is the formula for mode? L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into, right बच्चों? Is it clear? What will be L? 35. F1 is 23 minus 21 upon 23 to the 46 minus 21 minus 14 and the class width is 10. Solve कीजिए स्टूडेंट इसको. Please solve this. C option. ये ऑप्शन आ रही है. कर लेते हैं उसको. 35 plus 2 into 10 20 upon 25 minus 14 11. 1 plus 11 9 8 approximately yes 36.82 आ जाएगा approx. Right student? Is this clear? Is it clear? Any doubt बच्चों? अगर आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे आजकल? पहले तो बड़े अच्छे बच्चे थे, रिस्पॉन्ड भी करते थे. अभी किसी की आवाज ही नहीं आती कि यस नो एनी डाउट.
क्या हो गया, सर्दी ज्यादा हो गई बच्चे वहां पे? स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the upper limit of model class. Now you have to tell me which is the model class and that upper limit of. Sir, 45. Upper limit is 45. कैसे Sir, बच्चे? sir, upper limit of model class. सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए बच्चों। 6, 17, right? So now what is n? 80. N is even, so therefore n by 2 at term plus n by 2 plus 1 at term. ये कौन सी टर्म आ गई बेटा? 40 and 41st term. They will lie in this interval. इस इंटरवल में ही लाई करेंगे बच्चों। तो आपके पास अपर लिमिट ऑफ द मॉडल मीडियन क्लास विल बी, अच्छा सॉरी, इसने अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पूछा, सॉरी, ये तो सिंपल था, मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत नहीं थी बच्चों, मॉडल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ द गिवन डाटा, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा स्टूडेंट। ये आप तो सिंपल सा क्वेश्चन बचा है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए आप तीनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। Sir, 35.4. 35.4, okay. And how many of you got 35.4? देखिए बच्चों, मीन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द क्लास मार्क्स। व्हाट विल बी द क्लास मार्क्स? Sir, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Next, what will be the assumed mean? Sir, 30 or 40. अच्छा, तो आपने कौन से मेथड से किया है? Sir, step deviation method. सब डिवीजन से किया है, ओके। Yes, sir. तो चलिए हम 30 को रिज्यूम कर लेते हैं। सब डिवीजन के अंदर ui हो जाएगा बच्चों xi माइनस a अपॉन h, 10 minus 30 upon 10, that is right. Then fy ui, it will become minus 12, 0, 23, 28 and 50. इनका टोटल बन गया बच्चों माइनस 23, 23 कैंसिल हो गया, इसका टोटल आ जाएगा 33, 43, means this total will become 43, right? 43 plus 3, 46, 66 बन रहा है। Now apply the formula a plus summation fi ui upon summation fi into h. So what is a? 30 plus summation fi ui 43 into h upon total frequency was 80. Yes. 30 plus 8 5 is 40. 35.6 आ रहा है ये। Sir, 35.4. ये 43 आ रहा है बच्चे, ऐसा है ना देखो,
क्या है कि इसको बेटर है कि नंबर ऑफ इंटरवल जो है इवन है ना, तो बेटर है आप डायरेक्ट मेथड से कर लो, उसके अंदर कोई डिविएशन का स्कोप नहीं है, राइट। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप 40 को लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अगर आप 40 को लोगे तो आपका 35.4 आएगा, अगर आप 30 को लोगे तो 35.6। तो बेटर है कि इस क्वेश्चन में आप यू गो फॉर द डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, Yes, sir. द रीजन इज नंबर ऑफ इंटरवल्स आर इवन, so there may be slightly difference। ठीक है जी, तो when you take fi xi डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं, तो दिस बिकम 16 2 to 0 630 920। टोटल करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है ये? हाँ जी, Sir, 2830. 1830 चेक कर लेता हूँ एक बार, मेरा 0 8 11 13। ठीक है बच्चे, तो नाउ मीन विल बी summation fi xi upon 2830 upon 80। 8 3 24 43, ये क्या आ रहा है बच्चों ये, राइट। 8 3 24 40 8 5 3 55.4 आ रहा है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? Yes. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, अच्छा अगर आप ऑप्शन को अगर चेक करें बेटा, तो नियरेस्ट वन इज 35.4, so you have to take nearest one। is it clear? Yes, sir. Now comes to the question number 4, which is for the table 2, you have to find the mod of the data of table 2। Sir, 41.4. ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज डू दिस। mod of the table 2। Student, now what will be the model class? Sir, 35 to 45. 35 to 45, right? So this will be F1, F0, F2. okay, and H will be, H is 10, so L will be 35 plus 42 minus 10. minus F1 upon twice of F1 minus F0 into H। तो 35 प्लस 32 यानी कि 320, तो ये हो गया 60 50। तो 35 प्लस 6.4, so this comes out to be 41.4। Yes, sir. so choice A is the right choice। ठीक है जी, next is the median of the given data। Sir, 40.2. B option. how many of you have done?
प्लीज रेज योर हैंड। गर्ल स्टूडेंट का हैंड रेज है और किसी का नहीं। अदर स्टूडेंट्स प्लीज डू दिस क्वेश्चन। मीडियन के लिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। 8, 24, 34, 76, 100, 112. Right here. So now total terms are 112. What is the midpoint? 56. 56 again lies in 35 to 45 interval. Yes, Okay, बच्चों इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा 56. 56 lies in this interval only. So L in this case will also be 35. L plus क्या फार्मूला होता है बोलिए बच्चों? sir. L plus L plus N over 2 minus N CF over upon 2 F minus into CF. CF will be 34, 34 upon F 42 into 10, को सिंप्लीफाई किया तो this becomes 22, 22 upon 42, right? 110 and 21. इसको सिंप्लीफाई किया 35 plus 5 point, sir, 05 5.2. 50 42 8 let's say 40.2. मैच कर रही है चॉइस स्टूडेंट? Yes, sir. चॉइस बी विल बी द राइट आंसर, राइट? इज क्लियर? जिन लोगों ने नहीं किया बेटा प्लीज नोट डाउन, बोथ द क्वेश्चंस आर देयर ऑन द बोर्ड। The concept is clear to all of you? Yes, sir. Right. हाँ जी स्टूडेंट्स, सेक्शन 10B। 10B में सबसे लास्ट में एक लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठे हैं, प्लीज कम। जो वॉल के साथ वाली लाइन है ना बच्चों, सबसे लास्ट बेंच पे जो है, प्लीज कम टू द माइक। आ जाओ बेटा, असाइनमेंट लेके आना है। यस हाँ जी बेटा। हेलो। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? सर गुरकीरत सिंह। गुरकीरत सिंह। गुरकीरत समझ आ रहा है बेटा सारा कुछ? सर यस। कोई डाउट्स? सर नो। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? Shall I ask some question? हाँ जी बोलो आप। बेटा अभी आप कह रहे हो सब कुछ समझ आ रहा है, तो मैंने पूछा क्वेश्चन पूछ लूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर, आपके पास असाइनमेंट है? डू यू हैव द असाइनमेंट गुरकीरत सिंह? सर यस। क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट में देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन, रीड करो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। हाँ जी, क्या फाइंड आउट करना है इसमें? यस। सर अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यस गुरकीरत प्लीज टेल मी बेटा। सर असाइनमेंट। हाँ जी, आप पहले थोड़ा सा पीछे हो जाओ ताकि मुझे नजर आओ, नजर नहीं आ रहे हो बिल्कुल भी। हाँ जी, यस टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन।
सर मीडियन क्लास का फॉर्मूला लगा। हाँ, क्या होता है फार्मूला बेटा मीडियन क्लास का? सर L प्लस N माइनस सी N अपॉन 2 माइनस सी इंटू एच। बेटा ये मीडियन क्लास का फार्मूला होता है या मीडियन का फार्मूला होता है? And median. मीडियन। मीडियन का, बट हमें तो मीडियन क्लास निकालनी है, मीडियन तो नहीं निकालना ना। फिर डाउन। हाँ जी, सेक्शन 10 ई, सेक्शन 10 ई। हाँ जी, 10 ई के अंदर बचे हैं ये जो स्टूडेंट एक खड़े हैं ना, इनके साथ वाला स्टूडेंट आ जाएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, प्लीज कम। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? नहीं, आवाज नहीं आ रही है बेटा। मॉर्निंग सर। अनिल, क्या नाम है आपका बच्चे? सर परमजोत। परमजोत। परमजोत कैसे निकालेंगे बेटा मीडियन क्लास? यस। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की? सर मीडियन क्लास। हाँ जी, हाँ जी, कैसे निकालनी है बेटा? Sit down। सर सेक्शन 10 मीडियन में क्लास का फॉर्मूला नहीं पता। बैठो। सेक्शन 10 में सेंटर वाली लाइन में लास्ट में दो, सेकंड लास्ट बेंच पे सुधार जी बैठे हैं, प्लीज कम। हाँ जी बच्चे, कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास? क्या नाम क्या आपका जी? जशन जी। जशन। हाँ जी जशन, प्लीज टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। आती है नहीं आती है बच्चे? टाइम नहीं वेस्ट करना, प्लीज टेल मी यस और नो। नो। सिट डाउन। उनके पीछे जो गर्ल स्टूडेंट्स बैठे हैं, बोथ ऑफ यू प्लीज कम। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, प्लीज कम बच्चे। हाँ जी, प्लीज टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। Sir, L plus N over 2 ओके, minus CF upon F multiply H. बेटा इसमें एल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? Sir, L मॉडल क्लास होती है जो हमें मीडियन निकालना है या मॉड निकालना है? मीडियन। तो मीडियन के लिए मॉडल क्लास को कैसे यूज करते हैं बेटा? सेकंड स्टूडेंट को दे दो माइक। 3 दिन से 4 दिन से मैं यही चीजें पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आया तो कि मीडियन क्लास क्या होती है? और आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो बच्चे। हाँ जी बताइए, आप बताइए बेटा मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस प्लीज टेल मी फास्ट। मीडियन फॉर्मूला से अच्छा, मीडियन फार्मूला क्या होता है? मीडियन फार्मूला n by 2 minus CF upon F into H. एल नहीं करते प्लस ऐड शुरू में? एल करते हैं ऐड? Yes. एल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एल कैसे फाइंड आउट करना है बेटा? ये क्वेश्चंस आप कर चुके हो, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, सेक्शन सी, सेक्शन सी में सेंट्रल लाइन 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ बेंच पे सरदार जी बैठे हैं, जो प्लीज कम।
हमसे प्रैक्टिस है। सेक्शन सी। हाँ जी सर, बस 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 ये वाला बचना, भेज दो प्लीज इसको। हाँ जी, ये भेज दो। तो तुम्हारी तो बाहर जाके कोई नहीं। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यस। बच्चे 4-5 दिन से सेम टॉपिक चल रहा है और भर भर के क्वेश्चन कराए हैं मैंने इस चीज के, ठीक है। एंड आई होप कि आप सब लोगों को आता होगा, लेकिन ये तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है आप लोगों की। अभी तक मैंने अराउंड 7-8 स्टूडेंट्स को बुला के पूछा सभी सेक्शन से, नोबडी इज एबल टू आंसर माय क्वेश्चन। सिट डाउन। हाँ जी, सेक्शन 10E, सेंट्रल लाइन में सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट है प्लीज कम। आ जाओ दोनों, आ जाओ बेटा। बेटा आपके लिए अलग से इनविटेशन आएगा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। सर फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। देन 10 divided by 2 आंसर इज 30। डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 30। हाँ जी सर, यस यस सर, देन वी फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर देन इन सी एफ। इन सीएफ आपने पहला स्टेप तो बताया नहीं बेटा, आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी बच्चों हमारी, बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी। सर सी एफ विल बी 15, हाँ जी। 28, यस। 38, राइट। 46, 38, 46, ठीक है। 55 and 60। ठीक है जी। देन So then 38 will be 38 with the 30 with the middle term, and this lies in the interval 160 to 165, so ठीक है। yes. So then 28 will be CF. 28 will be CF। अच्छा, मुझे तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट चाहिए, सीएफ तो चाहिए ही नहीं मुझे बेटा। Sir, the upper limit will be 165. 165, वेरी गुड बेटा। प्लीज सिट डाउन, व्हाट्स गुड नेम। Sir Harshpreet. अर्शप्रीत, वेरी गुड बेटा। Thank you, sir. ऑल ऑफ यू बच्चे जिन लोगों को नहीं क्लियर है, प्लीज हैव अ लुक हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। Just see the question. It is given height and number of students. One 50 to 155, 155 to 160, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यू हैव रिटन द डाटा, यू हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड करते जाओ। 15 plus 13, 28, 28 plus 10, 38, 38 plus 8, 46, 46 plus 9, 55, and 55 plus 5, 60. Now this is your n, capital N. Now median you have to find, or median class. Now its n is even here, n is even. तो मीडियन क्लास जो होती है बच्चों, आपका जो मीडियन लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, n by 2th टर्म प्लस n by 2 plus 1th टर्म डिवाइड बाय 2, मीन्स 30th टर्म और 31st टर्म को डिवाइड करेंगे 2 से। अब आप CF को अगर ऑब्जर्व करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले 50 स्टूडेंट्स हैं, दे आर लाइंग इन द अंडर द
150 to 155 हाइट मार्क। उसके बाद वाले 28 जो है, बाद वाले 13 जो है इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट 10 दिस में और इसमें। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि 28 स्टूडेंट जो है वो 160 तक हो गए, then 29, 30, 31st, 32nd, up to 38 students are following in this interval, right? तो 30 और 31st इस इंटरवल में आ रहे हैं बच्चों। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड? Median class. मीडियन क्लास। ये जो 160 है, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, जो कम वाली होती है दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, एंड 165 इज नोन एज अपर लिमिट। तो हमने क्या आंसर करना था? व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एंड इट कम्स आउट टू बी 165। दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. So have you understood how to find out the median class? Yes, sir. Right students, so we'll finish it here only today. So tomorrow we'll continue, और प्लीज कल सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना है। कल मैंने आते ही सबसे क्वेश्चन पूछने हैं, राइट? Yes, sir. Thank you very much students for joining. Thanks a lot teachers.